I think we can start now. Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Kirti Suta, diabetologist at Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. I welcome you all for this Facebook Live session. From last few months, we have been facing the devastating effects of second wave of COVID-19. And because of this COVID, our other medical illnesses have been affected, have been neglected, including diabetes. And what we have seen is diabetic patients are under severe risk of this illness. And we have been neglecting this disease because of COVID-19. So today we have Dr. Makkar with us, who will be talking about the do's and don'ts for diabetes management to have a good control of diabetes. We welcome you, sir. Thank you. So we always talk about diabetes, starting with lifestyle management. So my first question to you is, if we talk about diabetes management, lifestyle plays the main role. But don't you think so? That it's really tough to exercise in this period, especially during this second wave? Thank you, Dr. Kirti. Good afternoon, everyone. Uh, I think lifestyle remains the cornerstone for diabetes management. And we are finding challenges in maintaining good, lifestyle during the COVID period because of the lockdowns, because of staying inside the house most of the time, people working from home, not going out because of the fear of COVID, and so on. But it is very important to maintain physical activity on regular basis because it is not just important for diabetes management, it is also important for maintaining normal health. And if you are not physically active on regular basis, likely to gain weight, you are likely to have poorer control of diabetes, your fitness level goes down, and your immunity also goes down. So, to maintain a good, normal health and good level of immunity, I think physical activity plays an important role. Now, question is, people are not going out. If they go out, they have to wear mask. They can't do intense activity wearing a mask outside the house. Not everybody has a gym inside the house or the exercise equipment at home. So those challenges are there. But still, now see, we have to adjust to the circumstances. So what can be done is people can walk inside the house. That is what I tell my most of my patients, that you walk inside the house and time it. Make sure that you're walking for 45 minutes or 1 hour. Whether you do it in one go or you do it in splits of 15 minutes or 10 minutes or 20 minutes, does not matter. If you have an exercise cycle or treadmill at home, it is very good. That can be used. For this Facebook Live session? Then you can, use WhatsApp, not WhatsApp, the videos on YouTube, which tell you how to do aerobics, how to do exercises at home, 15-minute works out and things like that. There are so many videos to tell you what kind of physical activity can be performed at home without going out and without exposing yourself to the excess risk. In any case, I think if you are going outside and if you are not walking in groups, or if you are walking with one or two people, maintaining adequate social distancing and wearing a mask when you are going for exercise, then you are safe. You can go for walk, you can exercise. So exercise is not to be curtailed during this period. Only thing is you have to find out ways how to do it on regular basis. So today we have Dr. Makkar. So what we mean to say is that we have to have exercise in our schedule. We have to find out ways to keep ourselves physically active. Maybe it's through a social platform or using our inside premises. Yes, I think you have to maintain physical activity. That is most important, and also keep a watch on your weight. And we cannot neglect the exercise part Yes, during so this period. It exercise cannot is be not an to be neglected, excuse. not to be neglected by any means. Then coming to the next part, diet plays a major role in diabetes management. What exactly is diabetic diet? Okay, so very good question and very important question. So diet basically, and for a good diet for diabetes patient is a healthy diet for anybody.
what we recommend for diabetes patients is to cut down free carbs, to cut down free sugars, to reduce the activity, to reduce the intake of fats so that they consume lesser calories, to have adequate protein, adequate fiber, and of course you should have adequate minerals and micronutrients. So basically, a diet which is given for diabetes patients is a high fiber, complex carb diet which is not high on fat and has adequate protein. Now, second thing is we tell diabetes patients to eat on time and have consistent meals in terms of portion size. So they should not be varying their meals, like at times they are not eating, at times they are just overeating, or they should not relate their meal to the glucose level, that if I have my glucose level is low or high, then I should change my diet on daily basis. That should not happen. So if they are eating on time, they are eating consistent, and they are avoiding free sugars and fats in their diet. That is what is diabetic diet. So on, but if we go in, terms of, how we distribute it, we tell them that almost 50% of your food intake should be, salads and fruits, not fruits with the high sugar content. Like, there are fruits which are very juicy and high in sugar, like mangoes, or high carbs like bananas. Those should be avoided, or they should be taken in small amounts. Fruits which have high fiber, you can take, adequate quantities of that. So about 400 grams of fruits and vegetables are must for everybody, not just diabetic, to maintain good health and to provide sufficient quota of antioxidants. So if you are consuming, say, a small plate of fruits and small plate of salads every day, you don't need any antioxidant supplementation, which people are very fond of going for supplements. So good healthy diet with adequate intake of carbs, low on fats and free sugars, and adequate protein intake is what is diabetic diet. So today I have the diabetic plate with me. Yes. Yeah, this is a very simplified concept. As I mentioned, you see, half the plate is green. So half of your food intake should come from fruits and vegetables. One fourth should be your intake from protein, milk, and milk products and other things. And one fourth should be the complex carbs. And you will see that is what exactly this plate depicts. So if we talk in simple terms, actually this is the type of food which everyone should eat, not only Yes, diabetics. that's what I said. And sir, one more question. क्या हर डायबिटिक पेशेंट को डाइटिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत है? आइडियली एक डाइटिशियन से कंसल्ट करने में बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। सी जब अंदाजे से आप चलते हैं तो आप बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कि हम सोचते हैं कि हमें, चलिए इस पेशेंट के लिए हमें एक 1600 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज की इसकी इंटेक चाहिए, तो उसके हिसाब से इसका डाइट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर डाइटिशियन से आप कंसल्ट करते हैं तो डाइटिशियन विल गिव यू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज थ्रू द डे, दैट योर ब्रेकफास्ट शुड टेक केयर ऑफ अबाउट 20 to 25% of calories, total calorie intake. Your lunch should take care of about 35%, dinner should be about 30%, and other 15% calories should be distributed for 2 mid-meal snacks. Now, those kind of distributions one cannot do by oneself because we do not have the professional knowledge at patient level. So once they discuss with dietitian, they understand how to distribute their calories. They get the idea of what they should be eating and what are the exchanges that are allowed, which will be giving you the similar amount of calories and similar amount of macronutrient proportion. Same आपकी calories हैं, same protein level है, same fat level है, but आप रोज एक तरीके का खाना नहीं खा सकते। तो डाइटिशियन आपको 7 दिन के लिए 7 डिफरेंट तरीके का खाना बताएगी, बट उसमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्ब इनटेक वो आपकी कंसिस्टेंट रहेंगे।
सो उससे आपकी शुगर में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं. सो इट इज गुड टू हैव अ प्रोफेशनल ओपिनियन रिगार्डिंग डाइट. So we have a question. I think I should take this question first. It's regarding the diet only. How do you recommend keto diet for type 2 patients to cut down fat? See, keto diet is currently in fashion. It is in fashion for, I think, last about couple of years now. But these are all temporary measures. Now, as for cutting down fat, one thing should be very clear that one should never focus on only diet to lose fat. कभी भी आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो सारा वेट लॉस आपका फैट लॉस से नहीं होता है. अगर आप टोटली डाइट पे डिपेंडेंट हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका 50% वेट जो है वो फैट से जाएगा, 50% लॉस आपका मसल मास में होगा. दैट इज वाई वी टेल ऑल दी पेशेंट्स कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस पीरियड में आपका खाली वेट लॉस नहीं होना चाहिए. उस पीरियड में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो उससे आपका मसल मास बिल्डअप होता है, मसल टोन बिल्डअप होती है, आप मसल मास का जो लॉस है कम होता है और फैट लॉस ज्यादा होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलर एक्सरसाइज with whatever diet plan you follow. Keto diets are temporary features, you can't do it for lifelong. तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल नहीं है. हाँ, थोड़े दिन के लिए आप अगर किसी को एक रैपिड वेट लॉस में डालना चाहते हैं या पेशेंट लूज नहीं कर पा रहा है और फॉलो करता है तो इमीडिएट वेट लॉस होता है. हाँ, थोड़े दिन के लिए आप अगर किसी को एक रैपिड वेट लॉस. Sir, I'll take the next question. पेशेंट लूज नहीं कर पा रहा Can a sugar level of around 200 pp be controlled with just diet control, no medications? Swati has put up this question and she hasn't specified anything about the fasting sugar or the HbA1c. The question is just about the I PP. think we should not be looking at the sugar value when we are planning the diet. We should be looking at what is the gap between the fasting and PP, and their diet modification plays bigger role. In any case, I think we should not be looking at. In any case, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जब भी डाइट प्लान करनी है तो उससे शुगर लेवल, अगर पेशेंट पहले उससे एक स्ट्रक्चर डाइट नहीं ले रहा है तो डाइट मॉडिफिकेशन से शुगर लेवल्स कम होते ही हैं. ऑन एन एवरेज फास्टिंग 30 to 40 आपका कम आता है, पोस्ट प्रेंडियल 50, 60, 80 भी कम आता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना इंटेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं. सो डेफिनेटली हो सकता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डाइट का होता है कि जो पोस्ट प्रेंडियल जो खाने के बाद के शूटअप्स होते हैं उनको कम करने में डाइट मॉडिफिकेशन का काफी रोल. Sir, she has given the answer for that fasting sugar and HbA1c. Her fasting sugar is 126, the PP is around 200, and HbA1c is 6.7. See, certainly अगर उस अब important question ये है कि is she already taking an adequate dietary precautions? If she is not taking dietary precautions, it is going to help. अगर वो डाइट पहले ही डाइट उसकी रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रही है तो उसमें बहुत चेंजेस करने का कोई फायदा नहीं होगा. अल्टीमेटली आप किसी पेशेंट को स्टारवेशन में डालने से आप डाइट शुगर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं. अगर वो डाइट. So I think Swati, you got your answer. So there's a question from Swati Iyer again. She has asked, is intermittent fasting recommended for controlling blood sugar levels? Intermittent fasting has more role, it is recommended more for weight reduction rather than control of glucose. Now, indirectly, if you lose weight, तो आपका blood sugar control definitely better होता है. ठीक है,
बट अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपको ये देखना है कि अगर आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ दवाइयों के साथ डायबिटीज में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप इंसुलिन पे हैं या अगर आप सल्फोनाइल यूरिया टाइप दवाइयों पे हैं जो शुगर को लो कर सकती हैं, तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपकी डोज एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। सो नॉर्मली आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि यू हैव टू ईट consistently on time and avoid certain kind of foods like free sugars and fat is very important for diabetes patients. In fact, we tell our diabetes patients not to do fast because जिस दिन वो फास्ट करते हैं उस दिन उनका शुगर फ्लक्चुएशंस होना ही है। कोई वो मील मिस करेंगे उस टाइम शुगर लो होने का रिस्क बढ़ जाएगा। जब वो हैवी मील खाएंगे रात को या सुबह हैवी मील खाएंगे तो उसके बाद शुगर बढ़ने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज है उसको मैनेज करना ऑन ए डे ऑफ फास्ट बिकम्स चैलेंजिंग। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि डायबिटीज पेशेंट्स फास्ट नहीं करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग सर्टनली कुछ पेशेंट्स तो कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स I think it is not advisable unless we are looking at weight reduction. Then we have to be very strict with monitoring of glucose and patient should be trained कि उसको अगर शुगर लेवल्स लो होते हैं तो खुद कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो बार बार लो होंगे या बार बार हाई होंगे। अच्छा, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये सब फैंसी डाइट्स आप थोड़े टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं। रूटीन में लाइफ लॉन्ग आप इन सब चीजों पे स्टिक नहीं कर सकते हैं। फॉर अ डायबिटिक पेशेंट व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी बेसिकली। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कोई 16-8 पे चलता है, कोई 2 days a week पे फास्टिंग की बात करते हैं, कोई ऑल्टरनेट डे फास्टिंग की बात करते हैं, कोई ये कहते हैं कि 2 दिन इकट्ठे फास्ट करो, 5 दिन बिल्कुल फास्ट नहीं करो। जिस दिन आप फास्ट कर रहे हो उस दिन आप एक मील खा रहे हो या एक मील भी नहीं खा रहे हो। तो ये बहुत सारी वेरिएशन है इसमें। बट जनरली जैसे इंडियन कॉन्सेप्ट है, हिंदू रिलीजन में आप एक दिन वीक में फास्ट करते हो। जो मुस्लिम रिलीजन है, रमदान वाला जो पीरियड है आप 1 महीना फास्ट करते हो। उस फास्ट के ड्यूरेशन में आपके दिन भर आप कुछ नहीं खाते, रात को इतना खाते हो कि आपके शुगर लेवल फिर खराब होते हैं। सो आपको एक्चुअली समझना है कि आपकी जितनी भी डाइट इनटेक है वो कहीं ना कहीं आपके शुगर को अफेक्ट करेगी, और जो उसका टाइमिंग आपका जो दवाइयों के रिलेशन में चेंज होगा तो फिर वो फ्लक्चुएशंस करेगा या फिर शुगर लेवल्स को खराब करेगा। तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि खाना जैसे बताया हुआ है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसी तरीके से खाएं, पोर्शन साइज कंसिस्टेंट रखें, टाइम कंसिस्टेंट रखें, ओवर ईटिंग नहीं करें, और शुगर लेवल साथ में अपने रेगुलर मॉनिटर करते हैं। सर, क्या डाइट की इम्पोर्टेंस पोस्ट कोविड पीरियड में भी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि डायबिटीज पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग वेट लूज कर रहे हैं। कोविड पीरियड में बहुत सारे लोग जिनका माइल्ड कोविड है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बट डाइट की जो इम्पोर्टेंस है वो खाली पोस्ट कोविड पीरियड में नहीं है, ड्यूरिंग कोविड पीरियड भी उतनी है, प्री कोविड भी उतनी। इफ पेशेंट इज मेंटेनिंग गुड ग्लूकोज कंट्रोल, जैसे तुमने शुरू में बताया कि जिन लोगों का कंट्रोल अच्छा है उनको कम कॉम्प्लिकेशंस हुई, उनकी डायबिटीज, उनको कोविड इन्फेक्शंस में रिस्क लेवल कम रहा, कॉम्प्लिकेशंस कम रही बिकॉज उनका शुगर कंट्रोल था। जिनका कंट्रोल नहीं था उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई। सो अगर आप शुरू में ही आप प्री कोविड आपकी डाइट कंट्रोल नहीं है तो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है आपके, आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ा हुआ है। बाद में अगर आपका डाइट ठीक नहीं है तो आपकी रिकवरी ठीक नहीं होगी, फिर शुगर लेवल्स आगे पीछे होंगे आपके, तो वो भी रिस्क बढ़ाएगा। पोस्ट कोविड निमोनियाज का रिस्क बढ़ जाता है और इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा होता है। तो आपको डाइट तो मेंटेन करनी ही है। सर, आई टेक 2 more questions. अखिलेश सिंह का क्वेश्चन है, कैन यू एडवाइज if the diet for diabetic patient varies based on age? For instance,
a young diabetic patient would have a different diet as compared to a senior citizen? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है. डाइट जनरली डायबिटीज सभी पेशेंट्स के लिए डाइट सेम ही रहती है, चाहे वो कम एज पे है चाहे वो ज्यादा एज पे है. ना ओनली थिंग दैट चेंजेस इज कि कंट्रोल आपकी कैलोरी इनटेक कितनी चाहिए आपको. एक यंग आदमी है जो बहुत फिजिकली एक्टिव है, यू नो हाई इंटेंसिटी वर्क में इन्वॉल्व है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. आप ओल्ड एज में है, रिटायर्ड मोड में है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है. बट जहां तक प्रोपोर्शंस इन्वॉल्व हैं कि कार्ब्स कितने होने चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, जनरली वो कंसिस्टेंट रहता है. So Sukhdev Singh has a question. My fasting is almost 90 to 125 and the PP is always more than 350 to 425. I'm your old patient. वो उसमें आपको इंसुलिन या दवाइयों के एडजस्टमेंट चाहिए. इतने जब शुगर लेवल्स वेरी कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और जैसे बताया जा रहा है उसके हिसाब से इलाज करना है. Sir, I think he is a patient of ours. इंसुलिन या दवाइयों के एडजस्टमेंट चाहिए. इतने जब शुगर लेवल्स वेरी कर रहे हैं तो आपको अपने सर डाइट को हम जैसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड पीरियड में बहुत वीकनेस आई है, वेट लॉस हो रहा है, तो हमें क्या एडवाइस करना चाहिए अपने डायबिटिक पेशेंट्स को? क्या कैलोरीज इंक्रीज करनी चाहिए या कैलोरी से ज्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ानी चाहिए? तो उनके क्या सोर्सेज हैं? हमारी वेजिटेरियन डाइट में और नॉन वेजिटेरियन डाइट तो ठीक है, वी कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एग या मीट, लेकिन वहाँ भी हम रेड मीट पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. प्रोटीन इंटेक का थोड़ा सा चैलेंज आता है. सर आप प्लीज हाईलाइट कीजिए इस चीज को. तो वेजिटेरियन डाइट में आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होती है आपकी जो दालें होती हैं उससे आती है या मिल्क प्रोडक्ट से आती है. सो दूध, पनीर, दही, ये सब चीजें जो है आपकी प्रोटीन इंटेक में हेल्प करती हैं. बट ऐसे में वेजिटेरियन लोग थोड़ा सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं. नट्स से प्रोटीन मिलती हैं आपको. यू कैन टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इन एनी केस प्रोटीन इंटेक से आपका जो है ग्लूकोज लेवल का स्पाइक्स भी कम होते हैं. कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ाने के एडवांटेज नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले, यू गेट एडिक्वेट प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स. दूसरी चीज है, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहता है तो जो वेट लॉस होता है वो नॉर्मली आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं. बट अगर शुगर लेवल आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका वेट लॉस जो है वो भी रिकवर नहीं होता, बिकॉज आप कंसिस्टेंट वेट लॉस मोड में चल रहे हैं. अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहता है. सर आई विल टेक माय नेक्स्ट क्वेश्चन. We always say to our patients कि you be in touch with your doctor for the sugar management, for diabetes control. Don't you think this COVID period is a hindrance to it? How can we overcome this thing? We always say to our patients कि you be in touch. See, it is very important to keep in touch with your physician. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको रेगुलर फॉलोअप अपने फिजिशियन से रखना ही चाहिए. रेगुलर मॉनिटरिंग अपनी कंडीशन की करते रहनी चाहिए. रेगुलर शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए. रेगुलर A1C चेक होता रहना चाहिए. बाकी इन्वेस्टिगेशंस जैसे जैसे एडवाइज्ड हो होते रहने चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज कि इस पीरियड में टू मेंटेन रेगुलर कंटैक्ट विद फिजिशियन हैज बिकम अ चैलेंज. इट इज वेरी राइट. बट आई थिंक इस पीरियड में हमने टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत सीखा है. अभी भी बहुत सारे पेशेंट चाहते हैं कि मैं क्लिनिक में ही आके दिखाऊं, बट हम एज फिजिशियन हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट को क्लिनिक में नहीं बुलाया जाए ताकि उसका एक्सपोजर रिस्क कम रहे. जो आ भी रहे हैं उनको हम एक डिस्टेंस पे बिठा के ही हम बात कर रहे हैं. पेशेंट ने भी मास्क लगाया हुआ है, हमने भी मास्क लगाए हुए हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज्ड है. अनलेस बिल्कुल जरूरत है पेशेंट को हमें देखने की फिजिकली, बिना हम जस्ट इंस्पेक्शन बेसिस पे विदाउट टचिंग पेशेंट वी आर वर्किंग. सो दैट कैन बी डन ऑन अ वीडियो कंसल्ट ऑल्सो. इनफैक्ट वीडियो कंसल्टेशन में ना पेशेंट ने मास्क लगाया होता है ना आपने लगाया होता है.
आप एक फेस देख के पेशेंट का काफी सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये हेल्दी लुक है, अनहेल्दी लुक है, टॉक्सिक लुक है, पेशेंट पहले से बेटर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप फेशियल अपीयरेंस से भी देखते हो, जो कि आप क्लिनिक में नहीं देख रहे क्योंकि अब सबने मास्क लगाया हुआ। तो आई थिंक टेली हेल्थ और वीडियो कंसल्टेशंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस सिचुएशन। डोंट वेट कि एक क्लिनिक पे ही आपको जाने का बारी आएगी या जब कोविड सिचुएशन ईज आउट होगी तभी आप जाके दिखाएंगे। यू शुड मेंटेन रेगुलर कंसल्टेशंस ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लैब्स का जहाँ तक सवाल है, घर से आपके सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं, रिपोर्ट्स घर पे पहुंच जाती हैं आपकी। यू कैन अगेन डिस्कस ऑन डिजिटल थ्रू डिजिटल हेल्थ मोड्स, बट रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर कंट्रोल मेंटेन कर सकें, टाइम से कोई दवाइयों की चेंज की ज़रूरत है तो वो कर सकें, या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकें। ये ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर कंट्रोल मेंटेन Right, sir. टाइम से कोई दवाइयों की चेंज की ज़रूरत है। So you always lay stress on the sugar monitorings, but what we are seeing these days is most of the people are not checking sugars. How important is the regular checking of sugars in this COVID period particularly? Lay stress on the So sugar monitoring जो है is like GPS for diabetes patients. How important is the regular आपको checking of अगर sugars आपको कहीं जाना है, आपने एक गोल सेट करा कि आज मैं घर से निकल रहा हूँ और मुझे सपोज एक हिल स्टेशन सपोज नैनीताल जाना है, तो मेरा गोल नैनीताल पहुंचने के लिए मुझे रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे जाना है। वो जीपीएस के बिना मैं अंधेरे में तो चल नहीं सकता। ऐसे ही मैंने गोल सेट किया कि मुझे 3 महीने बाद मेरा A1C 7% होना चाहिए। अभी अभी मुझे यही नहीं पता कि मेरी शुगर कितनी चल रही है, तो मैं 7% पे कैसे पहुंचूंगा। या मुझे ये सोचना है कि मुझे 30 साल में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने दें। उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए मेरी शुगर फास्टिंग 80 to 120 रहनी चाहिए, या खाने के बाद मैक्सिमम 150 तक जानी चाहिए, या मेरा A1C 7% तक से नीचे रहना चाहिए। अब मैं इसको बिना टेस्ट किए हुए कैसे मैं बता कर सकता हूँ कि मेरी फास्टिंग कितनी चल रही है, या पीपी कितनी चल रही है, मेरा A1C कितना चल रहा है। सो रेगुलर मॉनिटरिंग ओनली कैन टेल मी कि मेरे शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं, मुझे कहाँ दवाई की चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। मैं अगर आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मेरे शुगर लेवल्स पे क्या चेंज आया, तो वो मेरे को तभी पता चल सकता है जब मैं शुगर रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। अगर चेक ही नहीं कर रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंपेयर। इट इज लाइक जीपीएस, इट टेल्स यू द राइट डायरेक्शन कि आपको इधर चलना है। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, अपनी दवाई चेंज करनी है, डाइट चेंज करनी है, प्रॉपर एडवाइस लेनी है, एंड यू कम बैक टू ट्रैक। जैसे आप गलत मोड़ पे मुड़ गए तो आपका जीपीएस बताता है कि वापस आना है आप। तो आपने शुगर टेस्ट कर रहे हैं, आपकी शुगर अचानक बढ़नी शुरू हुई, आपको पता है कि मुझे अब फिर हेल्प की जरूरत है, तो आप वापस रास्ते पे आ जाते हैं। गलत मोड़ पे मुड़ गए तो आपका जीपीएस। Is there any recommendation from your side कि how many times should we check our sugar levels? या at what time we should check our sugar levels? सो डॉक्टर कीर्ति, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज एंड द पेशेंट। जो लोग जैसे टाइप 1 पेशेंट्स हैं जिनका 4 बार इंसुलिन यूज हो रहा है या 5 बार इंसुलिन यूज कर रहे हैं, उनको दिन में 4 से 6 बार या 8 बार भी इंसुलिन शुगर चेक करना होता है। जो लोग एक बार इंसुलिन ले रहे हैं, बाकी गोलियां ले रहे हैं, उनका 1 या 2 बार डेली चेक करने से भी काम चलता है, डिपेंडिंग ऑन उनका शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन पे लो होने का रिस्क नहीं होता, शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं है, वो हफ्ते में 2 या 3 बार चेक करके भी काम चला सकते हैं। बट जब आप दवाइयां चेंज कर रहे हैं, जब शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं या कोई एक्यूट प्रॉब्लम हुई है,
तो आइडली उस पीरियड में एटलीस्ट एक बार फास्टिंग और 3 बार तीनों टाइम खाने के बाद या एट टाइम्स तीनों टाइम खाने के पहले का शुगर हमें देखना चाहिए, जिसके बेस पे दवाई, डाइट, एक्सरसाइज सब एडजस्ट होती है। फाइनली जब आप कंट्रोल लेवल पे आ जाते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग की कम कर सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि अभी आपको ज़्यादा टेस्टिंग चाहिए, अभी आप कम कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली करते हैं। Sir, today we have a lot of questions coming for you. I'll take the question first from patient side. It's from Shruti. She is a patient of ours. Please advise, I have pain in my ankle and is it due to my diabetes? My fasting is approximately 200. सो एंकल में पेन है, अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो आपको कोई मूव या कोई जेल वगैरह लगाएं, अदरवाइज ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। But her sugar fasting is more than 200. शुगर की वजह से एंकल में पेन नहीं है, वो शुगर क्यों बढ़ा हुआ है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो आपको हमारे पास आते हैं तो हमें दिखाएंगे, नहीं तो जिसको भी दिखा रहे हैं उसको दिखाएं। Is there any advice on the kind of non-vegetarian food to be taken with regards to diabetes? सो नॉन वेजिटेरियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन फूड में कोई इशू नहीं है, बल्कि प्रोटीन ज़्यादा होती है, बट प्रेफरेबली आप वाइट मीट लें। रेड मीट में फैट कंटेंट ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है क्वांटिटी आपको मॉडरेशन में लेनी है। तीसरी चीज़ है जो कुकिंग होती है नॉन वेज फूड की, यूजुअली बहुत ज़्यादा ऑयल में करी जाती है। सो इट इज़ बेटर टू टेक रोस्टेड और स्टीम्ड मीट और कुक्ड इन लो अमाउंट ऑफ ऑयल, and the quantity has to be, portion size has to be regulated. Any recommendation for the amount of eggs which can be consumed regarding the yolk of the egg? So ideally जो recommendation है एग के लिए, because कोलेस्ट्रॉल yolk में सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो not more than 1 cholesterol or 1 yolk per day. As far as the egg intake is concerned, you can take 2 egg whites or 3 egg whites, does not matter, but not more than 1 yolk per day. And people who have high cholesterol levels ideally alternate day पे एक yolk से ज़्यादा नहीं लें। Another question, is there any change in the kind of diet recommended based on the type of diabetes? ऐसा कुछ नहीं है, सेम डाइट आप हर टाइप की डायबिटीज में मोर और लेस सेम डाइट यूज करते हैं, एक्सेप्ट Is there any change in the kind of diet recommended based on the type of diet? What tests are required after 3 months for diabetic and BP patient? दोबारा कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन? So what blood tests, what tests are required after 3 months for a diabetic and hypertensive patient? So हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कोई 3 महीने पे हमें टेस्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, अनलेस ऑलरेडी किडनी डैमेज है। डायबिटीज पेशेंट्स में एक टेस्ट होता है A1C जो हम बात कर रहे हैं, विच टेल यू कि पिछले 3 महीने का आपका शुगर लेवल कैसा रहा है। सो वो A1C हर तीसरे महीने में डायबिटीज पेशेंट्स में हमें देखना चाहिए। हाइपरटेंशन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर तीसरे महीने सारे टेस्ट देखने की जरूरत है। So what we are seeing is a number of increase in diabetic patients post-COVID. So do you see any correlation between the two? See, it is again very important question. कोविड के बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे कोविड के बाद डायबिटीज हो गई। अब वो कोविड की वजह से हुई, अभी हम एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। कुछ स्टडीज इंडिकेट कर रही हैं दैट कोविड कैन प्रेसिपिटेट डायबिटीज बाय डैमेजिंग पैनक्रियास। एग्जैक्टली कैसे अभी बड़ा मुश्किल है कहना, या उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का, या ऐसा है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी प्री डायबिटीज फेज में थे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इट प्रेसिपिटेटेड डायबिटीज, या कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका डायबिटीज पहले डायग्नोस नहीं था और ड्यूरिंग कोविड पीरियड डायग्नोस हुआ। सो ये सब पेशेंट्स अब हमारे पास डायबिटीज के साथ आ रहे हैं। सो कुछ इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले डायबिटीज डिटेक्टेड नहीं थी, कुछ ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज में थे ऑलरेडी और डायबिटीज
डेवलप हो गई बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और कुछ शायद इस वजह से हैं जो कोविड की वजह से डायबिटीज हो रही है। अभी बहुत मुश्किल है कहना कि डायरेक्टली कोविड की वजह से ही सारी डायबिटीज हो रही है। Any recommendations for patients in the post-COVID period? पोस्ट कोविड पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लापरवाही ना शुरू करें। अब ये मत सोचिए कि आपको कोविड हो गया तो इसके बाद आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लेसन्स जो हमें इस बार सीखने को मिले हैं और बड़ी मुश्किल हुई है वो सीखने में हमें। एक, कोविड किसी को भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है और वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। तो इसलिए कोविड के इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड या कोविड के प्रति कोई भी लापरवाही जो है वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपका कोविड खत्म हो गया, आपको पूरा रेस्ट करना चाहिए, आप पूरी रिकवरी हो गई, आप एक्टिविटी रिज्यूम करें, बट मास्क रेगुलर पहने, सैनिटाइजेशन पूरा मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करें। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो वैक्सीन जैसे आपकी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से लगवाएं और अपने को बचा के चलें। अगर आपको डायबिटीज है, रेगुलर शुगर चेक करते रहें अपनी, जस्ट मेक श्योर कि आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है। अगर आप ओवरवेट हैं, ट्राई टू लूज सम वेट, बिकॉज ओवरवेट लोगों में भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड के बाद के पीरियड के लिए। सर, मैंने देखा है लोगों में अभी भी डर है वैक्सीनेशन को लेके। आई थिंक यू शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि आज भी मैंने पेशेंट को देखा जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली थी। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी ना अभी भी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लोग, आई थिंक खाली यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में ही है, अप्रीहेंशन लोगों को होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे बेटर कुछ आएगा, इससे बेटर कुछ आएगा, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं। पर उस वेट में आपको अगर कोविड होता है तो तब आपको लगता है कि मुझे पहले लगवानी चाहिए थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन तो सबको करवाना चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन से 100% प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन 80% प्रोटेक्शन तो है। 20% लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने से आप बच जाते हैं, और डेथ रेट बहुत कम हो जाता है वैक्सीन के बाद। अभी हमें नहीं पता कि इससे बेटर वैक्सीन प्रूव होगी नेक्स्ट वाली या नहीं। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप वैक्सीनेशन लेते हैं उतनी जल्दी अपना रिस्क कम करते हैं। इसके बाद जितनी नई नई इन्वेंशन होंगी, जितनी नई चीजें हमारे पास आएंगी, उनका फायदा तभी हमें होगा अगर हम इस कोविड पीरियड में सेफ और जिंदा निकल जाते हैं। अगर वो उसकी वेट करते हुए हम कोविड के शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या आएगा उसका हमें कोई फायदा नहीं। तो उनका फायदा भी हमें तभी है जब हम इस पीरियड को में अपनी सेफ्टी पूरी मेंटेन करके चलते हैं। Another very important question which has popped up is, Akhilesh Singh wants to know, do diabetes patient needs to worry about black fungus during COVID or post-COVID? एब्सोल्युटली, डायबिटीज एक्चुअली ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस डायबिटीज की एक नोन कॉम्प्लिकेशन है, और अनकंट्रोल्ड सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ही रिपोर्टेड है म्यूकरमाइकोसिस पहले। नाउ अब इस पीरियड में क्या है कि ड्यूरिंग कोविड लोगों का शुगर कंट्रोल बहुत खराब हुआ है, क्योंकि स्टीरॉयड देने पड़ते हैं तो शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, क्योंकि स्टीरॉयड्स यूज होते हैं, इम्यून सप्रेशन होता है, तो इन्फेक्शन रिस्क वैसे भी बढ़ता है। अब जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हैं यही फैक्टर्स हों, हो सकता है कुछ और भी फैक्टर्स हों, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमें म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा देखने को नहीं मिला, पर इस बार म्यूकरमाइकोसिस बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना शुगर कंट्रोल अच्छा रखें ताकि आपका म्यूकरमाइकोसिस का रिस्क कम से कम रहे। Actually, diabetes is a growing challenge in our country also.
And what I feel is that we can reduce the diabetes burden by changing in our behavior, having a healthy lifestyle and a healthy diet. This is what I can sum up for. Challenge in our country also. I think it is And very what important. I It is feel very is important. we can reduce the diabetes burden. So we don't have any more questions, and my bank is also over now. How would you like to sum up today's session? So to sum up, diabetes is a disease which, if treated properly, if managed properly, And my bank is also over now. it How would helps you like you to sum in up living a today's session? normal और good quality of life. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अपने लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी. अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं, आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. इनफैक्ट एक नॉर्मल इंडिविजुअल से भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं. बट अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल मिजरेबल बना सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करें. मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, eating on time, eating in proper portions, eating proper food, the right choice of foods, taking medicines on time, monitoring your sugar regularly, getting regular investigations, and keeping track of your health and keeping in touch with your physician on regular basis. These are important things which can keep you safe and help in protecting your complications. Sir, I think we should accept this disease. It's not a social stigma. ये हमें क्यों हुई या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पे हमें वर्क करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. It's not a social stigma. ये हमें क्यों हुई या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे So दिमाग if से there are हमें no निकाल more देना questions, we चाहिए. can close क्या this session. बेस्ट कर सकते हैं उस पे हमें वर्क करना चाहिए. Sir, I think we can close it. So thank you everyone for joining our Facebook Live, and we try to keep working on different issues where related to diabetes, and trying to create educational programs like this. Hope you like them and find them useful, and we'll keep you posted with our further programs. Thank you. Thank you, everybody. Keep trying to create educational programs.